नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार अरविंद जी, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर देसाई, नमस्कार। How nice. Yeah, so we are okay, so we are now about to go. We have our guest and Dr. Nemesji Desai sir to preside the session. So welcome to Mashwara 14.0 episode, and this is a live consultation for the persons with intellectual and developmental disabilities during this coronavirus outbreak. I welcome all our guests and audience. Let's talk about today's topic, and this is we are going to talk about the art of speaking. The topic of today is going to be a good learning for all of us, how to deliver an excellent eye-catching speech, how do we conduct ourselves in front of a group of audience, what are the things to do and things to avoid. So let us talk, let us join this session, and I'll request everyone, please mute your mic. बोलने की कला हम सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा सीखने वाला विषय है हम सभी के लिए, और एक उत्कृष्ट बोलने के भाव को हम महसूस कर सकते हैं और देखें कैसे वैसा भाषण दिया जाए जिससे कि सभी लोग मन भावन तरीके से, मनमोहक तरीके से आपके तरफ, आपकी बात की तुम्हारे लिए भी हो सके। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम दर्शकों के समूह के सामने खुद को कैसे संचालित करें, खुद को कैसे प्रेजेंट करें, बोलने के समय क्या करना है और किन चीजों से बचना है, इसके बारे में भी हम आज जानेंगे। Your sound corresponds to the level of existence. Your experience sounds depends upon the refinement of your consciousness. Let's think about modern science and nuclear science. Everything has electromagnetic flow. It is to be attributed to the different types of vibration. It is also understood that while you speak, it becomes the cause of manifestation of many events within and outside your body, and this is called in Veda, in our Veda, the Karan Bindu, the clause particle. It is very importantly, we can I've just added it now. This is the Karan Veda. आपकी ध्वनि, आपकी वाणी आपके अस्तित्व के स्तर से भी मेल खाती है। आप अपनी ध्वनि या वाणी का अनुभव अपनी चेतना के परिशोधन से कर सकते हैं। आप इसको अपनी चेतना के साथ समझ सकते हैं कि आपने जो बोला है, जो आप बोल रहे हैं, वो किस लेवल में बोल रहे हैं। अगर हम आधुनिक विज्ञान या परमाणु विज्ञान के बारे में सोचें तो हर चीज में विद्युत चुंबकीय प्रवाह होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस वी फील। इसे विभिन्न प्रकार के कंपन के लिए जिम्मेदार भी ठहराया जाता है। कभी हमारे पास भूकंप होता है, कभी कोरोना होता है, कभी कुछ भी होता है, लाइफ में एक वाइब्रेशंस हमारे लाइफ में होता है। यह भी समझना चाहिए कि जब आप बोलते हैं तो यह हमारे शरीर के भीतर और बाहर की घटनाओं को अभिव्यक्त करता है और बहुत सारे घटनाओं का कारण भी बन जाता है। इसे वेद में ही हम कारण बिंदु कहते हैं और क्लॉज पार्टिकल्स भी कहा जाता है। The Mashwara 14.0 is bringing you an opportunity to find the way forward for the public speaking skills. मैं हमारे सभी मेहमानों का, दर्शकों का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आपने स्वागत आहे, बड़कम, और गुजराती में स्वागत को क्या कहते हैं, स्वागतम आहे। मशवरा के 14.0 के इस अंक में हम एक उत्कृष्ट बोलने के भाव और कला के बारे में चर्चा करेंगे। This Mashwara live consultation is through Zoom and Facebook Live for persons with intellectual disability, developmental disability, and their families, caregivers, and I can say the mass person in the community during this outbreak of corona. यह मशवरा लाइव परामर्श कोरोना वायरस प्रकोप के दौरान Zoom पर, फेसबुक के माध्यम से बौद्धिक और विकासात्मक अक्षमता वाले लोगों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, उनके परिवारजनों के लिए, हमारे प्रोफेशनल्स के लिए, सभी के लिए खुला हुआ मंच है। आप यहाँ आ सकते हैं। मशवरा की हर श्रृंखला आप सभी से है, आप सभी के लिए है, और हम
यही आपसे अनुरोध करेंगे कि आप इसमें जरूर जुड़ें। मशवरा सीरीज इज फॉर ऑल। Please circulate and join together. We are doing this Mashwara since 30th April. This is our 14th episode. Once again, welcome. I once again welcome our and appreciate our special guest to join this Mashwara Live. This episode is bringing you a very important topic: how to spin speaking to success. Our expert is, we welcome Sri Arvind Sharda ji, motivational speaker. He is a member of CAD. He is a well-wisher of Manovikas family. He is associated with many universities, many institutions, and very importantly, he has the disability also. He is about 90% disability. He has some issues in the spinal cord, and he last 40 years he has been in the condition of disability. So welcome you, sir. Arvind sir, it's our always pleasure. Namaskar, namaskar. Yeah, and this session will be presided by our very much loving and very mentoring persons, Dr. Nimeshji Desai sir. He is the director of IBHAS and president of Manovikas Society. I welcome you, sir. And we have the sign language interpretation by Rakhi Ramola. मैं पुनः आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं मशवरा लाइव में शामिल होने के लिए। आपका आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस लाइव में आए। और थैंक यू, हमारी बेटी अभी आई, उन्होंने कहा कि पापा आपका कैमरा ऑन नहीं है। मैं इतना मशगूल था आप सबसे कि मैंने देखा नहीं। ओके, थैंक यू। सो मशवरा का यह प्रकरण आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आ रहा है, सफलता का महामंत्र, बोलने की कला। एंड पुनः स्वागत करते हैं हमारे एपिसोड में हमारे विशेषज्ञ का। हमारे आज के जो मुख्य विशेषज्ञ हैं श्री अरविंद शारदा जी, प्रेरक वक्ता हैं और बहुत सारे संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। और आज इस सत्र की जो अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर निमेश जी देसाई, मनोविकास के प्रेसिडेंट, इबास के डायरेक्टर। एंड इस मशवरा का जो सांकेतिक भाषा में अनुवाद है वह भी उपलब्ध है राखी रमोला के विंडो पे, आप देख सकते हैं। आई विल स्टार्ट विद द डॉक्टर देसाई सर's ओपनिंग नोट। या प्लीज सर। Sir, you are muted. Yeah. Yeah. कुछ मौकों पे कुछ नहीं कहना ही कहना होता है। तो हम अरविंद जी की मधुर वाणी और ग्रेट आइडियाज सुनेंगे। अरविंद जी प्लीज। Yeah. So I'll go to the Arvind sir now, and I'll start. I'll ask him for giving the opening thoughts. The art of speaking is a rhythm of our cosmic vibration in our surroundings. While we talk, our sentences, the vakya, is the highest form of sound. While we talk in the sentence, and we build a various world, pre-existing and undefined states. हम बोलने की कला हमारे परिवेश में लौकिक स्पंदनों का लय का निर्माण करता है। जब हम वाक्य से बात करते हैं, वाक्य में बात करते हैं, तो ध्वनि की उच्चतम रूप है या ध्वनि का उच्चतम रूप है। हम सभी एक अविभाजित प्रारूप में पूर्व समय से मौजूद विभिन्न दुनिया का निर्माण जब हम बोलते हैं तो करते हैं। और आज की दुनिया का निर्माण, आज की मशवरा का निर्माण हमारे अरविंद जी के ध्वनि से होने वाला है। सो अरविंद सर, आपका स्वागत है। आप अपना ओपनिंग स्पीच दें। थैंक यू सर। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे प्रभु, मुझे असत से सत की ओर ले चल, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, मुझे मृत्यु से अमृत्यु की तरफ ले चल। ओम। मनोविकास के मशवरा कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म से मुझे और आपको चर्चा करने का और चर्चा सुनने का सुंदर अवसर मिला है। मैं इबास के डायरेक्टर और मनोविकास चैरिटेबल सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर निमेश देसाई और अपने मित्र डॉक्टर आलोक कुमार भुवन का
आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। एक तो मुझे बुलाने के लिए, और दूसरा इस अवसर पर जबकि सारा विश्व एक कोरोना के प्रकोप से त्रस्त है, लोगों के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर उन्होंने एक सुंदर परिकल्पना की है, एक सुंदर पहल की है। इससे पहले कि मैं आज के विषय में प्रवेश करूं, अभी आपके सामने लगभग 80 सेकंड की एक वीडियो क्लिप आ रही है, और वीडियो क्लिप है मशहूर हॉकी कमेंटेटर स्वर्गीय जसदेव सिंह की। आप लोग देखिए इस वीडियो क्लिप को। अभी कुछ क्षणों में आपके सामने वीडियो क्लिप आ जाएगी। Can we have the video clip, please? Yes. Right. बगल में खुखरी, ठीक पहचाना आपने। ये है गुरखा राइफल्स के सूरमा, जिन्होंने अपने संकल्प और दृढ़ निश्चय से बहादुरी की कितनी ही गाथाएं और कहानियां लिख दी हैं। इनके कमांडर है इस समय कैप्टन ए.जी. कुंडालकर। बातों के बादशाह जसदेव सिंह हैं जनाब। स्वागत है आप सभी का इस प्रोग्राम गुफ्तगू में। स्वागत है जसदेव सिंह। आपके बाद कमेंट्री की कोई दूसरी पीढ़ी आपको दिखाई देती है? अगर आप साफ साफ सुनना चाहते हैं तो मुझे कोई पीढ़ी नजर नहीं आती। ये काम मेहनत का है। अफसोस ये है कि हमारे यहाँ जो संस्थाएं हैं, खास तौर पर सरकारी और जो प्राइवेट चैनल्स भी आ गए हैं, अभी तक मुझे अफसोस है किसी ने ये नहीं सोचा कि ये जो स्पोकन वर्ड जिसको कहा जाता है, बोलचाल की भाषा जो कही जाती है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। ऐसे ऐसे अल्फाज सुनने में आते हैं कि अफसोस होता है कि हमारी जबान इतनी गिरी हुई है। ये थे पद्मश्री और पद्म भूषण से नवाजे गए स्वर्गीय जसदेव सिंह। इन्होंने जो कहा वो मैं फिर से दोहराता हूं, अगर आप साफ साफ सुनना चाहते हैं तो मुझे कोई पीढ़ी नजर नहीं आती है। ये काम मेहनत का है। हमारे यहाँ सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट चैनल्स कहीं भी स्पोकन वर्ड्स की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसे ऐसे अल्फाज सुनने में आते हैं कि अफसोस होता है हमारी भाषा इतनी गिर गई है। ये बात बहुत गौर करने लायक है कि आज हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की, वाटर पोल्यूशन की, शब्दों का जो पोल्यूशन हो गया है, भाषा जो खराब हो गई है, वो उससे भी भयंकर है। एक छोटा सा व्यक्तिगत अनुभव मैं बताता हूं। लगभग 20-22 साल पहले की बात है। रात का समय था और मैं सो रहा था। अचानक मोबाइल बजा और मैंने उठाया। उस उनीदी अवस्था में, नींद की अवस्था में, किसी अनजान अपरिचित व्यक्ति का फोन था और मेरे हेलो बोलते ही उसने अपशब्दों की भरमार चालू कर दी, एक के बाद एक के बाद एक। मैंने फोन काटा नहीं और कौतूहल था। मैंने उसकी बातों को सुनने की चेष्टा की। जाहिर था कि उसने किसी अपने मित्र को फोन मिलाया था और लगभग 1.25 मिनट तक बिना कुछ कहे वो अपशब्द, जिसे हम कहते हैं गालियां, देता चला गया। 1.25 मिनट के बाद में मैंने फोन काट दिया, स्विच ऑफ कर दिया और मैंने सोने का प्रयत्न किया। मेरे मन में एक बात आई, अगर भाषा इतनी गिर जाएगी तो हम तरक्की कैसे करेंगे? अरे भाषा तो वो होनी चाहिए कि बोले तो आदमी का मन झूमने लग जाए, इतना हम सुंदर बोले। एक बात है, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं।
तो चलिए आप और हम भी बात करते हैं, चर्चा को शुरू करते हैं। आज का विषय है सफलता का महामंत्र, बोलने की कला। हाउ टू स्पीकिंग टू सक्सेस। मैं भी सुन रहा था डॉक्टर आलोक कुमार भुवन को और डॉक्टर निमेश देसाई को, जिन्होंने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दिया। मैं नोट कर रहा था और बीच बीच में उनके स्टेटमेंट को भी मैं अपने वक्तव्य में रखूंगा। हर कोई सफलता चाहता है और हर कोई उस महामंत्र को भी ढूंढ रहा है जो सफलता उसकी मुट्ठी में लाके रख दे। बोलने की कला एक ऐसा महामंत्र है, अगर उसका आप ठीक से अभ्यास कर लें तो आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने में, उपलब्धियां करने में आपको बहुत आसानी होने वाली है। आज का जो विषय है उसमें दो बातें आती हैं, एक तो बोलने की कला और एक सफलता। हमारी आज का चर्चा का जो इम्फेसिस रहेगा वो बोलने की कला पे रहेगा और कुछ बातें सफलता के बारे में भी मैं करूंगा। एक कटु सत्य है, ये कटु सत्य है कि हम सब एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, चाहे आमने सामने, चाहे टेलीफोन के माध्यम से, संचार माध्यम के द्वारा। मैं चाहूंगा एक इमेज है वो शेयर की जाए। एक कम्युनिकेशन, हम लगातार संपर्क में रहते हैं। व्हाट्सएप में salvos of information are passed from one source to another. हमेशा इंफॉर्मेशन, चाहे व्हाट्सएप हो, ये एक इमेज आ गई है। इस इमेज को आप देखिए, कितने माध्यम हैं, हम एक दूसरे के साथ में संपर्क में रहते हैं। आज तो न जाने कितने माध्यम हैं, लेकिन इन सब के बीच में प्रश्न केवल एक है और वो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या हम संवाद स्थापित कर पा रहे हैं? क्या कोई सुन भी रहा है? मुश्किल ये है कि जो विश्व आज, जिस विश्व में हम रह रहे हैं, एक छोटी बात भी बहुत बड़े मेजर कॉन्फ्लिक्ट को पैदा करने के लिए पर्याप्त है। ये हम सबका अनुभव है, हम सबका, कि फेसबुक में जहां हम रहते हैं वहां लोग न जाने कितनी बार एक दूसरे को अनफ्रेंड कर देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आप देखिए किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, लोग ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं, आपस में मनमुटाव हो जाता है। मूल कारण क्या है इसका? मूल कारण केवल एक है कि हम बोलने की कला, संवाद को स्थापित करने की कला को भूलते चले जा रहे हैं। उद्देश्य यही होना चाहिए हम सबका कि जिस वाणी से हम कॉन्फ्लिक्ट कर लेते हैं, उस वाणी को हम इस तरह परिष्कार कर लें, शुद्ध कर लें कि जीवन में कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत दूर की बात है, हम सर्वप्रिय बन जाएं। तो चलिए अब आज के इस चर्चा में विधिवत प्रवेश करते हैं और क्रमबद्ध कैसे हम संवाद करें, कैसे हमारी बात दूसरों तक पहुंचे और कैसे उस संवाद के जो परम लाभ हैं वो हम ले पाएं, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, जिन लोगों के साथ भी आप संवाद स्थापित कर रहे हैं, आपकी बातचीत है, चाहे वो मीटिंग्स में हो, व्यवसाय में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आप एक बात ध्यान रखिए कि उस व्यक्ति की, अपने साथियों की बनावट को जरूर पहचानें। बनावट से मेरा अर्थ ये है कि वो भाव प्रधान है या विचार प्रधान है। आर दे इमोशनल और दे आर रैशनल थिंकिंग टाइप? ये बहुत जरूरी है। हम अक्सर भूल कर जाते हैं, हम संवाद करते हैं अपने साथियों की बनावट को बिना जाने हुए। ये बिल्कुल दो अलग किस्म के लोग हैं। अगर आपका साथी भाव प्रधान है तो आपको भावनाओं के स्तर पे आके बात करनी ही पड़ेगी।
आप हमेशा रैशनल होकर बात नहीं कर सकते, क्योंकि जो भाव प्रधान होते हैं वो रैशनल जब सामने आता है तो पीछे हट जाते हैं। ऐसे ही अगर आप भाव प्रधान हैं और सामने विचार प्रधान व्यक्ति आ गया तो आपको पूरी तरह से विचारों के माध्यम से अपनी बात कहनी पड़ेगी। तो इस बात को आप पूरी तरह अपने जीवन में उतार लें। आपको अपनी बात कहने में, मेरा जहां तक अनुभव है, बहुत आसानी हो जाएगी और आप संवाद स्थापित कर पाएंगे। तो पहली बात जो थी वो ये थी कि भाव प्रधान, विचार प्रधान, इसका निर्णय अब कर लें। अब आते हैं हम दूसरी बात पे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जो मुख्य पॉइंट जो आज मैं आपके सामने रख रहा हूं वो मैंने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा है, न कि किताबी ज्ञान से। देखिए, किताबी ज्ञान हमको बहुत दूर तक नहीं ले जा सकता। दिस इज डेड नॉलेज। नॉलेज तो वही है जिसको हम अनुभव करें, जीवन में उतारें और बात करें। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना, ऑपोजिट व्यू पॉइंट। अभी आपके सामने एक इमेज आ रही है, कैन वी हैव द इमेज प्लीज? उसको आप ध्यान से देखिए कि ये आप देखिए एक इमेज है 6 और 9, दो व्यक्ति खड़े हुए हैं। बीच में जो अक्षर है, एक को 9 दिख रहा है, एक को 6 दिख रहा है। जस्ट बिकॉज यू आर राइट डज नॉट मीन आई एम रॉन्ग। You just haven't seen life from my side. ये बहुत ही गंभीर बात है और ये बहुत उत्कृष्ट बात है। देखिए, जो व्यक्ति दूसरों की आंखों से जगत को देख सकता है, इसे आप लिख लें, he will be stalwart. जो व्यक्ति दूसरों की आंखों से जगत को देख सकता है, he will be stalwart. बीच बीच में मैं कुछ नोट्स बना के लाया हूं, मैं रेफर करूंगा। इसलिए नहीं कि मुझे नोट्स से बोलना है, इसलिए कि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। एक उदाहरण मैं देता हूं आपको प्रतिपक्ष भावना पे। एक महर्षि हुए हैं चरक, जिन्हें कहा गया है महर्षि चरक। चरक ने वेद के जो सिद्धांत थे उनके विपरीत अपनी धारा खड़ी कर दी। खाओ पियो मौज करो, ऋण लो, घृतम पीवत, घी पियो, कोई जरूरत नहीं इन सब का। उस महर्षि उस चरक को भी भारतीय वांग्मय ने, भारतीय मनीषियों ने महर्षि की उपाधि दी, महर्षि की। उनकी धारा वेदों के बिल्कुल विपरीत थी, धर्म के विपरीत थी, उसको भी महर्षि माना क्योंकि उनमें प्योरिटी थी। ये है प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना से आपको एकोमोडेशन की एक सामर्थ्य आ जाती है, सबको साथ में लेके चलने की, दूसरों के दृष्टिकोण को समझना और अपने नजरिए को उसके साथ मिला के देखना। इससे जो तालमेल बैठता है वो तो जो कर सकते हैं, जिन्होंने इस चीज को अंजाम दिया है, जीवन में उतारा है, जो भुक्तभोगी हैं, वही समझ सकते हैं। जब हम दूसरों की बात को सुनते हैं तो हमको लगता है कि अरे हमारी बात सुनी जा रही है। तो इससे 3 लाभ होते हैं। एक तो एकोमोडेशन विचारों का, दूसरा सामने वाले को लगता है कि हम अपनी बात उन पे नहीं थोप रहे हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, प्रतिपक्ष भावना को जीवन में उतारने वाले के साथ में एक बात होती है, उसकी बात सुनी जाती है। तो 2 चर्चा हो गई, भाव प्रधान, विचार प्रधान, प्रतिपक्ष भावना। और अब हम तीसरे बिंदु पे चर्चा करेंगे, आर्ट ऑफ लिसनिंग। तो हमारे सामने एक इमेज आएगी आर्ट ऑफ लिसनिंग की। कैन वी हैव द इमेज प्लीज? ये है द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन लाइज इन लिसनिंग। दोस्तों, मेरा अपना अनुभव है कि आर्ट ऑफ लिसनिंग के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। सुनना और बोलना संवाद के 2 पहलू हैं। आप यो भी कह सकते हैं कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं।
Listening and speaking are like incoming and outgoing breath. जैसे सांसें आ रही हैं और जा रही हैं, उससे आप लिसनिंग को तुलना कर सकते हैं। मुझे अपनी व्यक्तिगत जीवन में जो मेरा एक अनुभव रहा वो ये रहा कि मुझे सुनने वाले बोलने वालों से ज्यादा पसंद रहे हमेशा। देखिए, अपने साथियों की बात जब आप सुनते हैं तो आपको स्वीकृति मिल जाती है, यू विल बी एक्सेप्टेड। और मैंने एक चीज पाई कि जो लोग व्यक्ति सुन पाते हैं उनमें बहुत आकर्षण भी होता है। तो a listener is more attractive than a speaker. हर व्यक्ति, जब आप सुनने बैठते हैं तो आपको एक चीज समझ में आती है, हर व्यक्ति के पास में खजाना है और उस खजाने से आप न जाने कितनी बातें सीख सकते हैं। मुश्किल ये हो जाती है हम सबके साथ में कि हम सुनते हैं उत्तर देने के लिए, जबकि सुनना होना चाहिए समझने के लिए। तो ये तीसरी बात थी, आर्ट ऑफ लिसनिंग। और चौथा जो बिंदु है वो मैंने चौथे नंबर पे डाला है। कई लोग कह सकते हैं वो सबसे पहले आना चाहिए था, कि बोली की सुंदरता, मधुर बोलना या मधुर भाषण। चौथा बिंदु है मधुर भाषण, मधुर बोलना। एक छोटी सी पौराणिक बात है, उससे मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाहूंगा। हम सबने सुना है, एक महर्षि हुए हैं, महर्षि ऋषि विश्वामित्र। विश्वामित्र को आप संधि विच्छेद करते हैं, विश्व और मित्र। जो संपूर्ण विश्व से मैत्री की इच्छा रखे वो विश्वामित्र है असल में। तो संपूर्ण विश्व से मैत्री की इच्छा कौन रख सकता है? उसका सीधा उत्तर है जिसको बोलना आता है। आप चौंक जाएंगे कि विश्वामित्र ऋषि सुबह उठ के एक ही प्रार्थना करते थे, अमृतम में आसन, मेरी वाणी में अमृत हो। तो आप देख लीजिए, एक बड़े ऋषि की प्रार्थना है, अमृतम में आसन। देखिए, एक बात याद आ रही है मुझे, मानस में लिखी हुई तुलसी की। तुलसी मीठे वचन का सुख उपजे चहुं ओर। जहां मीठे बोलने वाला बैठ जाता है, माहौल में सुख उपज जाता है। हम सबने एक बात सुनी है सम्मोहन की, वशीकरण की। बचपन में सुनते थे वशीकरण होता है। देखिए, जीवन में बहुत चीजें ऐसी हैं जिनमें वशीकरण है। खाने में सम्मोहन है, जो अच्छा खाना बनाते हैं वो अपने वश में लोगों को कर लेते हैं। व्यवहार में सम्मोहन है, लेकिन सबसे बड़ा सम्मोहन जो है वो वाणी में है। अगर आप सही बोलना चालू कर देंगे, सीख लेंगे, तो आप विश्व को सम्मोहित कर सकते हैं। व्यक्ति की बात तो छोड़ दीजिए, ये तो जितना कहा जाए वाणी की सुंदरता पे, वाणी की शुचिता पे, तो वेदों ने क्या कह दिया है, वाणी की तपस्या से लेकर न जाने क्या क्या कह दिया है। अब देखिए, कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूं, वो कितनी सुंदर उत्कृष्ट हैं, उसको आप देखिए। ये चाणक्य सूत्र से है। कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति के संबंध में नोट दिया है, कोई भी व्यक्ति जो गुणवान है उसकी तुलना की है कि कोई भी रत्न कितना ही अनमोल क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इंसान रूपी रत्न से उत्कृष्ट नहीं हो सकता। आगे चलिए, पंचतंत्र में असमय की बात को अगर बृहस्पति भी कहते हैं तो लघुता को प्राप्त होते हैं। बात समय से कहनी चाहिए, जैसे सफेद कपड़े पर नीला रंग ज्यादा स्थायी होता है। कहने का मतलब यह है कि बोली पे आप काम करिए, दोहों को, इडियम्स को, फ्रेजेस को याद करने की आदत डालिए, वाणी को उत्कृष्ट करिए। आपके जीवन में समस्याएं कम होती चली जाएंगी। पांचवा पॉइंट जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं वो है मैं और मेरा। मैं और मेरा।
संवाद में हम अक्सर एक भूल कर देते हैं, बहुत बड़ी भूल है, कि संवाद को हम अपने इर्द गिर्द ले आते हैं। मैं, मेरा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। देखिए, मैं और मेरा संवाद को उबाऊ बनाने के लिए पर्याप्त है। ये बहुत बड़ा जाल है। मैं और मेरे के जाल में आप मत फंसिए। ये आपको कुछ भी हासिल नहीं होने देगा। इसका एक दुष्प्रभाव ये होता है कि जो मैं और मेरा ज्यादा करते हैं, उनके प्रति लोगों की नापसंदगी हो जाती है। एक चीज हमेशा हम सबको ध्यान रखनी चाहिए, मैं आज बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, बोलना एक प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी नहीं है। बोलना एक ईश्वर की कृपा की एक देन है। इसको पूजा की तरह ही हम सबको उपयोग करना है। मैं और मेरा को हटाते ही आपके मित्रों की संख्या जितनी है उससे 3 गुनी हो जाएगी, ये निश्चित है। आगे चलते हैं। क्या चीजें हैं जो आपको एक अच्छा संवाद करने की कला सिखा देती है? छठे नंबर पे जो आता है वो है नाम याद रखना। ये जीवन में उतार लीजिए। अपने जीवन की एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूं। लगभग 25 वर्ष पहले घटी मेरे जीवन में। मैं विलियम नाम के एक शख्स से मिलने गया। वो देख नहीं पाते थे, दिव्य चक्षु थे। कोई काम था मुझे, मैं उनसे मिलने गया। उसमें मोबाइल मेरे पास नहीं था। कार्ड एक्सचेंज हुआ, 20-25 मिनट का उनके साथ में मीटिंग थी, हुई, मैं आ गया। उसके बाद 20 वर्षों तक कोई संवाद नहीं हुआ उससे। अचानक एक दिन बैठे बैठे मैं अपने विजिटिंग कार्ड्स को ठीक कर रहा था, विलियम्स का कार्ड मेरे हाथ में आया। मैंने 20 वर्ष बाद विलियम को फोन उठाया और अपने मोबाइल से फोन मिलाया। विलियम ने फोन उठाया, अपना लैंडलाइन। मैंने कहा हेलो। वहां से आवाज आई, अरविंद। मेरा दिल भर आया। आज आपसे बातें करते करते भी संजीदा हो गया। एक व्यक्ति जो 20 वर्ष पहले मुझसे मिला और 20 वर्ष के बाद में पहली बार हेलो बोलते मेरा नाम लेके पुकार दिया, मैं उम्र भर के लिए उसका हो गया। उससे मेरी मैत्री हुई, कई बार मिलना हो जाता है। ये कला है नाम याद करने की। मैं ये नहीं कहता आप 2000 नाम याद करिए, आप 800 नाम याद रखिए, लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं कि चेष्टा करिए, अभ्यास करिए नाम याद करने का। देखिए, जिंदगी में अपने नाम से मीठा कुछ भी नहीं है। कोई आपको नाम से संबोधित करे और आपके उसके न हो जाए, वो भी प्रेम से ही हो सकता है। तो ये नाम याद करना एक बहुत छोटी सी बात है, मैंने अपने जीवन के अनुभव से मिलाई। वो विलियम, मैं सलाम करता हूं उस व्यक्ति को। उसने क्या कर दिया, सम्मोहन कर दिया मेरे पे, मैं उसका बन गया। ये उतार लीजिए सम्मोहन आप सब। 7वें नंबर पे प्रशंसा करना। प्रशंसा। कैन वी हैव इमेज प्लीज? आलोक, कैन वी हैव द इमेज? एक इमेज आ रही है, उससे आप देखें। यू आर ऑसम। एक छोटी सी पीले रंग पे काली शाही से लिखी यू आर ऑसम। किसी भी साथी को, अपने किसी भी दोस्त को ये सब प्रशंसा आप जरूर करें। देखिए, the deepest principle in human being is the craving to be appreciated. The word used is craving. जैसे मीठे की क्रेविंग होती है, जैसे कोई चीज की आपको क्रेविंग हो गई, रात के 12 बजे मुझे तो खाना है। एप्रिसिएशन की एक क्रेविंग होती है। इस क्रेविंग को आप दूसरे को संतुष्ट करें, हमेशा ध्यान रखें। प्रशंसा, अपने हर साथी को प्रशंसा चाहिए, लेकिन हाँ, इसमें कुछ चीजों का आप जरूर ध्यान रखें। वो मैं अपनी तरफ से आपको बोलना चाहता हूं कि प्रशंसा अनावश्यक ना हो, कि हम कई बार अनावश्यक प्रशंसा कर देते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है ना। और एक बात और ध्यान रखें कि प्रशंसा के पीछे आपका प्रयोजन क्या है, ये भी स्पष्ट होना चाहिए। और उसके बाद में प्रशंसा तो एक ऐसी चीज है, आप करेंगे प्रशंसा तो आपके पास में प्रशंसा लौट के आनी ही है, और कई गुना बढ़ के आनी है।
तो ये छोटी सी आलोचना प्रशंसा पे हुई। उसके बाद हम चलते हैं आलोचना करना, संवाद करने का तरीका। आलोक ने एक बात कही थी कि संवाद में क्या नहीं करना है, ये भी अंत में कुछ पॉइंट्स में बता दूंगा आपको, लेकिन जो नहीं करना है संवाद में वो आलोचना नहीं करना है। शायद अमेरिकन किसी प्रेसिडेंट्स की लिखी हुई है, एनी फूल कैन क्रिटिसाइज एंड कंडेम एंड कंप्लेन एंड मोस्ट फूल्स डू। क्रिटिसाइज से आप बिल्कुल बच जाइए। आलोचना किसी के भी उत्साह को भंग करने के लिए काफी है। आलोचना वापस आती है, इट्स लाइक ध्वनि और प्रतिध्वनि। आप आलोचना कर देंगे, आलोचना वापस आने वाली है। आपस में आलोचना क्या न कर दे, खाई पैदा कर देती है। हाँ, आलोचना करते समय एक बात का आप ध्यान रख सकते हैं कि आपको किसी मीटिंग्स में, कॉर्पोरेट मीटिंग्स में लगता है आलोचना करनी है, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपके पास आलोचना के लिए विकल्प जरूर होना चाहिए। भाई आपने ये बात रखी है, मुझे ये बात पसंद नहीं है, लेकिन मेरे पास विकल्प है। अगर विकल्प नहीं है तो आप उसमें आलोचना मत करिए। केवल आलोचना के लिए आलोचना नहीं करिए, पीछे में बैकअप रखिए, तब आलोचना हो पाएगी। ठीक है। हाँ, एक बात होती है कि मान लीजिए आपके मुंह पे कोई आपकी आलोचना करे, तो देखिए बड़ा कठिन काम है। मैं सच बताऊं आपको, मुझे भी शुरू में बहुत दिक्कत होती थी। आलोचना मुंह पे करना वालों को सहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप दो तीन काम कर सकते हैं। एक तो ये है कि आलोचना जब की जाती है तो जो अन्य लोग बैठे हैं उनका भी मशवरा आप लीजिए। भाई मेरी आलोचना की जा रही है, आप सब भी अपनी राय रखते हैं, एक बात। और दूसरी बात यह है कि आलोचना को स्वीकार करने में और स्वीकार नहीं करने में आप स्वतंत्र हैं। इसलिए अपने प्रति अगर आलोचना होती है तो निश्चिंत हो जाइए, दूसरों की राय लीजिए, और आलोचना सही मालूम पड़े तो उसे स्वीकार करिए। ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। 2 पॉइंट और हैं, उनको मैं आपके सामने संक्षेप में रख देता हूं, फिर कुछ और चर्चा कर लेंगे। वो है व्यवधान डालना। व्यवधान डालना या बात करना, बात को काटना, क्षमा कीजिएगा, ये एक इल मैनर है। इसको पूरी तरह से जीवन में से निकाल के फेंक दीजिए। व्यवधान डालने से फ्लो खत्म होता है। और मान लीजिए आपकी बात का कोई, आपकी बात आप कर रहे हो, कोई व्यवधान डाल दें तो साफ शब्दों में मना कर दें, मधुर शब्दों में, कि कृपया व्यवधान न डाला जाए। क्योंकि व्यवधान डालने से एक चीज होती है, डायलॉग का जो फ्लो है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए व्यवधान कदापि न डालें, बिल्कुल पूरी तरह बचें। हाँ, कभी कभी अत्यंत आवश्यक हो जाए तो सोच समझ के ये कार्य आप कर सकते हैं। और इस श्रृंखला में अंतिम बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है गोपनीयम, गोपनीयम, गोपनीयम। आप एक आदत डाल लें। बातें कही जाती हैं, बातें हम भी लोगों से कहते हैं, बातों को अपने तरफ, अपनी तक करने की आदत डाल दें। मैं आपको अपना जिंदगी का एक अनुभव बता दूं। अगर आप बातों को, किसी की कही हुई बातों को दूसरे को नहीं कहते हैं तो आप सच मानिए लोग आपसे अपने हृदय की बात शेयर करना चालू कर देते हैं। ये काम कठिन है, आसान नहीं है कि कोई मिर्च मसाले वाली बात भी आपसे कह गया, आप दूसरे को न सुनाए। पावर चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए। लेकिन अगर ये आप आदत डाल लेंगे, मैं आपको बता दूं, यू विल बी ए जीनियस। लोग आप पे विश्वास करने लगते हैं, आपसे बातें साझा की जाती हैं, और जब आपसे बात साझा की जाती है विश्वास के आधार पर, आपका कद, आपका व्यक्तित्व बहुत बढ़ता है। इसको हमेशा ध्यान रखिए। आलोक ने कुछ बातें, मैं पॉइंट नोट कर रहा था, अपने शुरू के संबोधन में की कि सर से हम ये भी पूछेंगे कि किसी संवाद में
कुछ चीजें जो है वो क्या नहीं करना चाहिए। मैं आपसे एक बात बता दूं जो मेरा अपना अनुभव है। अनुभव के आधार पे अगर आप किसी संवाद में प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो उसमें हिस्सा न लें। आप संवाद में प्रिपेयर्ड होने के बाद ही हिस्सा लें, इसको आप अवॉइड करिए जिंदगी में। एक बात। दूसरी बात, संवाद में रिपीटेशन को मत करिए, रिपीटेशन आपका स्तर नीचे कर देता है। तीसरी बात जो मैंने अपने जीवन में अनुभव की, लीड ले लेके मत बोलिए। 10 लोग बैठे हैं, उससे लीड ले ली, इससे लीड ले ली और अपना एक आइडिया फॉर्म कर लिया, उसको आप ना बोलें। और एक बात जो मैंने अपने जीवन में भी अनुभव की, भूल भी की, वो ये थी कि हर डायलॉग में, हर जिरह में, बहस में, किसी में भी हमें छलांग मारने की जरूरत नहीं है। हर चीज में हमारी जो अभिव्यक्ति है वो सीमित हो, आप ये रख लीजिए। और 5वीं और अंतिम बात, ये आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। बहुत ज्यादा बोलना आदमी के अंदर में मानसिक चंचलता बढ़ाता है। आपके शब्द कम हो, नपे तुले हो, ज्यादा कतई ना बोलें। तो ये एक संवाद लगभग 30-35 मिनट का मैंने आपके सामने रखा। कोई प्रश्न हो, किसी का कोई प्रश्न हो तो इसी के आधार पे हम प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, और नहीं तो थोड़ी सी चर्चा को हम आगे बढ़ा सकते हैं। आलोक, डू वी हैव एनी क्वेश्चंस? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद क्या बताऊं कि आपने तो एक ऐसा पिटारा खोल दिया ज्ञान का कि उसको लेकर कहीं भी लोग कुछ भी आगे बढ़ सकता है। भाव की प्रधानता से लेकर गोपनीयता तक जो आपने बात कही है सर, वो रियली इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, यू हैव एनी क्वेश्चन और सजेशन फ्रॉम द ऑडियंस, इट इज मोस्ट वेलकम। आप प्लीज हमें जो है कि अपने मैसेज बॉक्स पे भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, या फिर आप हमें बोल सकते हैं। आप अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन कर सकते हैं। जी सर। यस सर, यस। एक एक करके करेंगे, एक साथ सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे। तो आप पहले अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए, और मैं आपका क्वेश्चन लेने से पहले, एक मिनट सर, मैं आपका क्वेश्चन लेने से पहले मैं जस्ट एक विचार जानना चाहूंगा डॉक्टर निमेश जी देसाई सर का अभी के उसमें। ओके ओके डन, ठीक है, आप बोलिए सर। प्रणाम सर। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। सर प्रणाम सर, मेरा नाम शंकर है और CRC नेल्लोर से हूँ सर। जी जी। और मुझे बहुत खुशी हुई सर आपका लेक्चर सुनते हुए। मुझे कई सारी चीजों पे मैं पास्ट में चला गया सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग कई बार डिबेट में जाते हैं सर, तो अगला अगर गलत डिबेट कर रहा है, अगर हमें पता है हमें बोलने की आदत नहीं है, तो उसके प्रश्न को हम कैसे काटे सर? ओके, कोई अगला आलोक क्या 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 प्रश्न है? मैं आवाज में डिस्टर्ब है। हाँ, बताइए। मैं बताता हूँ सर। इनका प्रश्न है कि अगला कोई डिबेट कर रहा है और वो गलत बात पर डिबेट कर रहा है, तो उसको हम कैसे रोकें? अगर वो बात ही गलत है, अगर उस चीज की है, तो कैसे रोकें? देखिए, मैं आपको एक अपना जीवन का, क्योंकि ये आपने एक सुंदर प्रश्न किया है और ये समस्या हम सबके जीवन में है कि कई बार क्या होता है कि लोग गलत डिबेट कर देते हैं। और बिल्कुल अब सवाल ये उठता है कि 2 पक्ष हो गए, एक का पक्ष सही है, एक का गलत है। मैंने अपने जीवन में पाया कि आपको अगर लगता है कि डिबेट ही बिल्कुल गलत दिशा में जा रहा है, पहला उस दिन उस डिबेट को बंद कर दें। अगर आपके साथ में सामने ये चुनौती है कि अगर आप टाल सकते हैं तो उस दिन टाल दीजिए। एक बात। दूसरी, मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर डिबेट बिल्कुल ही गलत है और आपको लगता है, आपके साथियों को लगता है कि आपका पक्ष सही है, तो आप अपने पक्ष पे टले रहिए। 2 बात। तीसरी बात, मैं आपको सबको एक गंभीरता से एक बात बताता हूं, वो हम सबके घरों में कई बार क्या होता है कि इस तरह की बात हो जाती है कि किसी का पक्ष बिल्कुल गलत होता है घरों में और किसी का सही होता है। मैंने जीवन में अनुभव किया कि अगर घर के लोग भी गलत बात करते हैं और आप कभी कभी उस बातों को मान लेते हैं, आप सच मानिए, जो गलत बात करता है उसकी बात मानी जाती है, उसको अपना असत्य दिखने लगता है। नाम भूल गया इनका, लोग क्या नाम था इनका, जो भी मैं भूल गया उनको। हाँ, शंकर। अगर आप घर के लोगों की गलत बात को भी मान लेंगे, कभी कभी उन लोगों को अपना असत्य दिखने लगता है
और वो आपसे सही बात करने लग जाते हैं। तो 3 तरह से आप गलत डिबेट को ले सकते हैं। एक बार लगता है बिल्कुल गलत दिशा में, उसको अवॉइड कर दीजिए, एक दिन छोड़ के अगले दिन आइए, उसकी बातों को समझिए। देखिए, बातों को समझना बहुत जरूरी है, क्यों गलत जा रहा है, क्या सही में प्रॉब्लम है। मुझे लगता है मैंने अपने जीवन में इन 3 चीजों को अनुभव किया और तीनों से मुझे फायदा मिला। हाँ जी, हेलो। ग्रेट सर। हेलो, यस मैम। हाँ जी, यस मैं सर गुड आफ्टरनून, मेरा नाम उमा सागर कोटी, मैं आशा स्कूल में दिल्ली कैंट में हूँ। सर ने कहा था कि अति चंचलता जो मानसिक आपका चंचलता बढ़ाता है ना। तो ऐसे कई बच्चे होते हैं जो हमारे आते हैं, बच्चे जो बहुत चंचल होते हैं, बहुत ज्यादा टॉकेटिव बिहेवियर होता है उनका, बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हम क्या उनके साथ कर सकते हैं कि उनका ये बिहेव थोड़ा, या बातें करने की जो चंचलता है उसको कम किया जा सके। हाँ आलोक जी, आलोक, उमा जी का बहुत सुंदर प्रश्न किया है, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। इसमें एक कठिनाई है कि चंचलता को हम डील कर सकते हैं, मैं अपनी बात जानता हूं, जो बड़े हो गए, वयस्क हो गए, है ना। बच्चों की चंचलता का जहां तक प्रश्न है, ये विषय मेरा नहीं है आलोक। मैं चाहूंगा कि बच्चों की चंचलता के विषय में आप या डॉक्टर निमेश देसाई कुछ कह दें तो बढ़िया रहेगा। वयस्कों की जो चंचलता है मन की, उसको दूर करने का मैंने अपने जीवन में किया है, वो तो मैं कर सकता हूँ, वो बच्चों में मुझे कठिनाई आएगी। सर बता दीजिए सर, बड़ों में ही बता हमें काम ही आएगा सर आगे। हाँ ठीक है। देखिए, मैंने अपने जीवन में पाया, देखिए मैं आपको सबको एक बात बोलता हूँ, जो भी सुन रहे हैं, मन को वश करना या मन की चंचलता को वश करना, 10 हाथी अलग दिशा में दौड़ रहे हैं, 10 हाथी, और महावत एक ही है। वैसा कठिन काम है मन की चंचलता को दूर करना। लेकिन मन की चंचलता बहुत कम की जा सकती है अगर आप 2 ही चीज कर लें। पहली बात कि आप अपनी ग्रॉस बॉडी पे ध्यान देना चालू कर दें, उसको अनुशासित करें, कैसे भी, खाने के संयम से, एक्सरसाइज के संयम से, स्वास्थ्य के संयम से, उसको आलस्य में न जाने देने के संयम से अगर आप करेंगे तो आपका शरीर का प्रभाव मन पे पड़ेगा और मन की चंचलता कम होगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि मन जो है वो शरीर से ऊपर है, वो शरीर को कंट्रोल करता है, लेकिन बुद्धि जो है वो मन को कंट्रोल करती है। आप काम करें हमेशा बुद्धि पे। हम कई बार गलती क्या करते हैं, मन किसी का वश में नहीं है, दौड़ता है, कभी भविष्य में, कभी भूतकाल में। ये समस्या मन के साथ रहती है। मैंने जीवन में एक बहुत सुंदर चीज पाई, अगर आप अपने इंटेलेक्ट का सदुपयोग करेंगे तो मन की चंचलता दूर होगी। सिंपल एक्सरसाइज में बता दूं, कई लोग क्या करते हैं कि दूसरों को गलत राय देते हैं, भैया पश्चिम विहार जाना है, कहां से जाऊं, कर्नाटक का रास्ता बता देते हैं। आप ये काम मत करिए। अगर बुद्धि को हैबिट पड़ जाती है, गलत काम करने की बुद्धि को हैबिट पड़ जाती है, अगर बुद्धि सही काम करेगी, आप बुद्धि बिल्कुल महावत की तरह है, वो मन को कंट्रोल में कर लेगी। 2 बात, एक मैंने शरीर के स्तर पे बात की, एक बुद्धि के स्तर पे। मन के स्तर पे मैं आपको एक बात कह देता हूं, और फिर बच्चों की भी एक बात जो मेरे मन में है वो मैं कह देता हूं। मन के स्तर पे एक बात है, आप ध्यान रखिएगा हमेशा, कि मन हमारा जो है ना, पसंदगी और नापसंदगी के आधार पे बहुत चलता है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या रुचि है, क्या नहीं रुचि है। देखिए, मन को आदत पड़ जाती है और मन चंचलता में बैठा रहता है। आप लाइक्स एंड डिसलाइक्स के आधार पे मन को मत ले जाइए, आप सही और गलत के आधार पे मन को ले जाइए। आप सच मानिए, मन आपका जो चंचलता है वो दूर होगी। जैसे आपको आम खाना पसंद नहीं है, लेकिन आम शरीर के लिए गुणकारी है, आप अदर डाल लीजिए, गुणकारी है, मैं खाऊंगी। आप सच मानिए, मन की चंचलता दूर होगी। रही बच्चों की बात, तो एक मैं सबसे निवेदन करूंगा कि बच्चों को वो लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे मत जाइए, उसको ये पसंद है ये दे दीजिए, बच्चे चंचल हो जाते हैं। वैसे बच्चों का स्वभाव चंचलता है, बहुत ज्यादा चंचलता है। तो मेरा तो यही निवेदन है आपसे कि किसी बड़े विशेषज्ञ को आप दिखाइए जो इसमें एक्सपर्ट हो, है ना। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू सर। हाँ, पहले आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम गौतम कुमार है। राम सिंह बोल रहे हैं सर? गौतम जी पहले बोल रहे हैं। हाँ, पहले गौतम जी बोल दीजिए, फिर राम। हाँ सर, मेरा ये है कि सर अपनी बातों को रखने में एक हेजिटेशन टाइप का होता है, मतलब कहीं सही बात है उसको भी रखने में हेजिटेशन। जी।
इस हेजिटेशन को कैसे दूर कर सकते हैं? मैं आपको एक बहुत अपने जीवन का अनुभव बताता हूँ। ये समस्या मेरे साथ भी थी कि कई जगह मैं अपनी बातों को नहीं रख पाता था। उसमें मेरे दो काम आए, या तो कोई मित्र हो उसको साथ ले जाएं तो वो आपको सपोर्ट देता है, पूरी बात रख सकते हैं। लेकिन अगर वो संभव नहीं हो तो मैं आपको एक बात बताऊं, आपको जो बात रखनी हो ये बिल्कुल कारगर सिद्ध होगा, आप चालू कर दीजिए उसको, आप कागज पे नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, आप 4 बातों को कागज पे नोट कर लीजिए और उसको ले जाइए मीटिंग के अंदर में, उन कागजों को रख दीजिए सामने। मैं आपको ठीक बताता हूँ, 4 में से 3 बात आप कह पाएंगे, करके देख लीजिए इसको। ओके, आपने कभी किया है? कभी किया है आपने? कभी किया है? नहीं। आप इसको ट्राई करिए, ये चालू हो जाएगा होना। राम ट्राई करिए। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मैं यूपी बेसिक एजुकेशन में काम कर रहा हूँ। जी जी। तो इसमें अधिकतर बच्चे जैसे बहुत कुछ जानते हैं फिर भी हमारे पूछने के बाद वो बता नहीं पाते हैं। हाँ। तो इसके लिए हम सर कौन से ऐसे मेथड का इस्तेमाल करें जिससे कि बच्चा उस अपने चीज को, अपने अंदर के जो डर है या अपने जो कहना चाह रहा है, जो अपने भाव को अभिव्यक्ति कर सके? देखिए, मैं इसमें आपको अपना उदाहरण दे दूं एक, और फिर ये बात चूंकि बच्चों का आ गया तो मैं आलोक से कहूंगा कि इसको जी। लेकिन मैं आपको अपना उदाहरण दूं कि कई बार मुझे अपने स्कूल में ये कठिनाई आती थी। तो स्कूल में जब कठिनाई आती थी, जो टीचर्स होते थे वो पहचानते थे, तो वो अकेले में बुला के बोलते थे कि तुमको आता है या नहीं आता है। अकेले में वो मेरी झिझक निकालते थे, और उसका सबसे बड़ा लाभ मुझे ये हुआ कि 3 साल बाद, मैं 4वीं या 5वीं की बात है, मैं 8वीं कक्षा से मैं स्टेज पे जाने लगी अपनी बात कहने के लिए कि मुझे स्टेज में। तो आप बच्चों में जिनमें आती है ना, थोड़ी मेहनत करिए, एकांत में बात करिए, मुझे लगता है आपने की होगी। तो उससे नहीं लाभ हो तो किसी विशेषज्ञ से, आलोक है या कोई और, उससे राय लीजिए। ये जरूर, इसमें मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं लगती। बच्चों में झिझक होती है, वो झिझक निकल जाएगी, है ना। ग्रेट, थैंक यू। जी बताइए। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम ओशिमा है और मैं बीएड स्पेशल एजुकेशन कर रही हूँ। सर मेरा क्वेश्चन सर से ये था कि सर ने कहा जैसे अपने लेक्चर में कि हमें मैं और मेरा इन शब्दों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। बट सर कई बार ऐसा होता है, हम देखते हैं कि हमसे कुछ पूछा जाता है और बोला जाता है अपने अनुसार बताओ, तो हम अपने उस जगह पर विचार रखते हैं, और अगर उस समय हमारी कोई आलोचना करता है या हमारे विपक्ष में बोलता है तो हमें उस पॉइंट को हाईलाइट करना होता है कि ये अकॉर्डिंग टू मी है। तो सर हम इस सिचुएशन को कैसे वहां पे बचे? देखिए, मुझे लगता है, हाँ बिल्कुल, नहीं आपने अच्छी बात बोली। देखिए, अगर आपसे ये कहा जा रहा है ना, कि आप अपने अनुभव के आधार पे बोलिए, जब आपको कहा गया है तो इसमें आपकी तो कोई गलती है ही नहीं, उसमें तो आपको मैं और मेरा यूज करना ही पड़ेगा ना। आज मैंने भी आपको इस मेरे जो भी सेशन है, अभी जो चल रहा है, अपनी व्यक्तिगत अनुभव बताए हैं कि किसी ने मुझे अपशब्द कहे, लगातार कहता चला गया, या किसी ने मेरा नाम लेके 20 साल बाद पहचान दी, मैंने मैं और मेरा यूज किया है ना। तो समय से अगर आप मैं और मेरा यूज करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्पष्ट शब्दों में ये कह दें कि इसे मेरा, मैं और मेरे के आधार पे मुझे कहा गया है, तो इसमें किसी को भी आपत्ति हो तो भी आपत्ति बताइए। इसमें तो मुझे लगता नहीं कि आपकी कोई भी भूल है या कोई भी आप गलत कर रही है, बिल्कुल करना चाहिए। सर इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा इनको, जरूर। जब आप कोई भी आकस्मिक शब्दों का प्रयोग करते हैं, कोई ऐसे शब्द हैं जो कि बड़े अच्छे से और बड़े तुरंत इंस्टेंटली आ रहे हैं, या वो वी कैन से दैट द कैजुअल वर्ड्स यू आर यूजिंग, तो उस समय क्या होता है कि जो आपकी बात आप बोल रहे हैं इस तरह से बोलिए कि आप लगे कि आप सारी घटनाओं को आप अपने बात के माध्यम से दिखा रहे हैं लोगों को। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कि आपकी बातों से लोगों का घटना होते हुए देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी एक झलक से, आपकी एक बात से पूरा रहस्य खुल सकता है। अगर आप वहां पर अगर अपनी बात कह रहे हैं और कोई रहस्य को खोल रहे हैं, आप अगर अपनी कोई बात से इस तरह से आप उसको प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप कोई एक अच्छे बात में सबका इंटरेस्ट ला रहे हैं, कोई ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो हमारे ख्याल से वहां पर अगर आप मैं करके भी बोल रहे हैं तो वहां पर कोई ऐसी कोई बात नहीं है। आपके आंतरिक मन का जो तर्क है और जो आपका संवेदना है, अगर आप वो अपने शब्दों के माध्यम से उपयोग कर रहे हैं, तो दैट यू कैन से दिस इज वेरी गुड वे टू
कि हम जो अपनी बात है वो बोल सकते हैं और हमारी बातों पे लोगों का अटेंशन ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। So I would like to request all the audience कि we are virtually open through our मनोविकास ई-ज्ञानशाला। हमारे मनोविकास यस, मैं आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ। मैं कुछ लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे सवाल आए हैं तो मैं उनका जवाब दे देता हूँ। और हमारा जो भी जिन व्यक्ति को सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो आप mashwara@manovikas.family पर ही बात करिए। आप अगर इस मैसेज बॉक्स में कुछ भी लिखते हैं तो वी आर जस्ट ओनली टेकिंग द क्वेश्चंस, वी आर नॉट टेकिंग एनीथिंग रिगार्डिंग द सर्टिफिकेट। तो आपसे निवेदन है कि आप सर्टिफिकेट रिलेटेड बात को सिर्फ और सिर्फ ईमेल पे ही भेजें, सर्टिफिकेट रिलेटेड बातों को, और यहाँ पर नहीं लिखें। आपको और मैं बताना सर। हेलो जी। जी अभी जो शंकर जी का जो प्रश्न था ना कि बच्चों से जब हम सवाल पूछते हैं तो वो जवाब नहीं दे पाते हैं। जी एक्चुअली क्या होता है कि जब हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं तो जिस व्यक्ति से वो सवाल पूछा गया है, he takes some time to search the answer। उसके पास में जवाब होता है और उन जवाबों के लिए उनको शब्द ढूंढने होते हैं, मगर हम क्या करते हैं अक्सर कि वो जवाबों की झड़ी लगा देते हैं, प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं एक के बाद और बोल उसको करते हैं। तो इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर है और हमको मालूम है बच्चे को आता है तो वी शुड प्रोवाइड हिम सम टाइम टू स्पीक। और साथ में नंबर 1, नंबर 2 हम प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। नंबर 3 बात जो है, उन सवालों के जो जवाब है वो हम लिख करके स्लिप पर रख लेते हैं। अगर बच्चे की रीडिंग कैपेसिटी है तो वो बच्चे को हम पूछ सकते हैं कि हाँ भाई इनमें से कौन सा जवाब है, एंड देन वी कैन आस्क हिम टू स्पीक। तो ये मैं सजेशन देना चाहता था। आई थिंक ही विल लाइक इट। थैंक यू। यस वेरी गुड। आलोक सॉरी आलोक, ये हाँ एक प्रश्न मेरे पास भी आ गया अलग से, वाइफ के मोबाइल पे किसी ने भेज दिया, मेरे संबंधी ने, वो मैं ले लेता हूँ। जी प्लीज। किसी ने कहा है कि डज आर्ट ऑफ स्पीकिंग गारंटी सक्सेस। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है कि क्या आर्ट ऑफ स्पीकिंग से आपको सफलता मिल ही जाएगी। इसका उत्तर स्पष्ट दे दूं, नथिंग इन दिस वर्ल्ड गारंटी सक्सेस। शायद मेरे ख्याल से विदुरा जी ने प्रश्न किया है मेड्रास चेन्नई से, नथिंग गारंटी सक्सेस। लेकिन अगर आपको बोलना आ गया तो आप निश्चित मानिए आप डूबेंगे नहीं, असफल नहीं होंगे। इतनी ताकत है बोलने में। और एक बात और है, ये जितने 8-10 पॉइंट डिस्कस हुए हैं इनमें अगर 2-3 भी आप मास्टर कर लेंगे ना, सब इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के बाद एक आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आलोक। हाँ जी और सर जी मैम बोलिए। सर मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, हाँ जी ओशिमा सर अभी क्वेश्चन पूछा, हाँ जी सर मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो सर ने काफी अच्छे तरीके से रिप्लाई दिया। सर थैंक यू। सर मुझे एक चीज और कहनी थी कि जब हम अपनी बात रखते हैं ना तो हमारी प्रशंसा काफी होती है और सफलता का मूल मंत्र भी हम इसे कह सकते हैं। पर सर मेरे को अपने अनुभव से लगता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने प्रश्न रखता है या अपने आप को एक्सप्रेस अच्छे से कर रहा है, वहाँ आलोचना भी काफी ज्यादा होती है उस व्यक्ति की। और सर कई बार यही आलोचना उस व्यक्ति के तनाव का और चिंता का कारण भी बन जाती है। तो सर आप उसको कैसे देखते हैं? हाँ नहीं, आपने बहुत बढ़िया बात की। देखिए एक बात आप देख लीजिए कि प्रशंसा और आलोचना ये दोनों ही पचानी बड़ी मुश्किल है। बड़ी मुश्किल है प्रशंसा भी पचानी और आलोचना भी पचानी। ये दोनों हमको ना अननोन टेरेन में कई बार डाल देती है। देखिए आलोचना को आप एक बात, ये स्ट्रेंथ आपको मेहनत करके अभ्यास से आपको ना विकसित करनी पड़ेगी। मैं आपको सच बताऊं कि थोड़ी सी आलोचना भी होती है, प्रशंसा भी होती है। ठीक है, ये स्वभाव है। थोड़ा सा आलोचना में कुछ हद तक आप ये भी कर सकती हैं कि भाई आप आलोचना कर रही हैं, जो मैंने पहले बताई थी बात, आपके पास बैकअप प्लान क्या है? आपके पास इस बात का कोई बैकअप जो मुझसे बेहतर वो है क्या? और दूसरा, आलोचना कोई करता है तो आपको स्वतंत्रता है कि आप उससे एक्सेप्ट करें ना करें। तो इन दोनों चीजों में से आप देखिए और थोड़ा सा मुझे लगता है मेहनत करिए, आलोचना तो आएंगी। कोई किसी को आलोचना छोड़ा नहीं है आज तक, तो उसको थोड़ा सा सहने की शक्ति भी हम रखें। ग्रेट या और सर एक और जी सर मेरा क्वेश्चन है जी। आप कौन? सर माय सेल्फ अनीता राय। ये अनीता जी बोलिए।
सर गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी हम कोई आर्गुमेंट्स करते हैं या किसी भी फैमिली मेंबर्स के साथ हमारी आर्गुमेंट्स होती है, तो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, वो गुस्से में बहुत कुछ कह जाता है या हम कह देते हैं, तो ये बिहेवियर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। देखिए, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा है कि कई बार क्या होता है, जो टोन जो बहुत तेज चली जाती है ना, या कोई चिल्लाने लगता है, तो उसको बड़ा मुश्किल है करना। इसका बड़ा मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप मंदिर गई होंगी, कई बार मंदिर में घंटे बजते हैं, लोहे के घंटे होते हैं, उसकी आवाज बहुत तेज होती है। अगर आप दूसरी हथौड़ी ले लें और उस घंटे को मारने लग जाएं, तो हालत क्या होगी? ऐसी हालत होगी कि वहां पे कोई खड़ा नहीं रह जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि ये जो टोन बहुत तेज होती है या गुस्सा जो होता है ना, इसकी एक अवधि होती है। उस अवधि में हथौड़े को हथौड़े से मत मारिए, लाल रंग में लाल रंग मत मिलाइए, काले में मिलाना है तो सफेद मिलाना है। तो घंटे बज रहे हो तो या तो आप कुछ मत करिए या फिर उसको लकड़ी से मारिए, जिससे कि आवाज कम हो। कहने का मतलब है कि अपनी बात रखिए, लेकिन अपनी टोन को नीचे रख के। मैं आपको ठीक बताता हूँ, मेरा अनुभव है, इससे आपकी बहुत समस्या हल होगी। और एक वेदर द स्टॉर्म, उस समय का जो एक माहौल है उसको आप पास हो जाने दीजिए। सब कोई अपनी ओरिजिनल स्थिति में लौटते हैं, तब अपनी बात रखिए, है ना। ये आपने जो बात कही, ये हम सबके सामने समस्या आ जाती है, तो इसको आपको टैक्टफुली करना पड़ेगा, ठीक है। और एक बात इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि हमें अपने बोलने की जो कौशल है, जो हमारे बोलने की जो कला है, उसको एक आदत के तरह से विकसित कीजिए। उसमें एक आपका बोलना, जो स्पीकिंग स्किल्स जो है, वो इट शुड बी अ हैबिट। और जब आप एक अच्छे हैबिट के साथ कोई चीज, शुद्ध विचार को रखते हैं, आप शुद्ध मन से कोई चीज को बताना चाहते हैं, तो आगे चल के वो वास्तव में एक ठोस और रचनात्मक बल बन जाता है। और वो कई चरणों से गुजरना होता है। मतलब जब आप कोई चीज किसी को बोले हैं, तो वो उस पर सोचेगा कि हाँ, आपने सही कही है, गलत कही है, कैसी बात कही है। तो आगे चल के अगर उसको उस बात का एहसास होगा जिसके लिए आप बोल रहे हैं, तो आप देखेगा कि वो आपको कितना लोहा मानते हैं, आपसे कितना प्यार से बात करते हैं। तो आपको थोड़ा सा, जब हम बातचीत कर रहे हैं, तो एक बातचीत करने की हैबिट होनी चाहिए। हमें थोड़ा सा इसको विकास भी करना चाहिए समय के साथ साथ। और हमें जो हमारे मन में जो बातें आ रही है, उसको आगे चल के हम कैसे और अच्छे से कई चरणों में गुजार के, मतलब हम कई बार उस बात को एनालिसिस करके तब लोगों तक रखें, तो भी अच्छा हो सकता है। तब भी ये वाद विवाद की बातें कम हो सकती है। सो वी वुड लाइक टू टेल यू ऑल काइंडली, आपको हमने जो एक लिंक शेयर किया है फीडबैक का, आप उसमें मैसेज बॉक्स में लिंक है, आप उसी लिंक पे आप हमें फीडबैक देते रहिए। और हमें ये चीज साझा कीजिए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, कैसे आप इसको समझते हैं। सर अरविंद सर, प्लीज एक क्वेश्चन लेंगे सर, लास्ट क्वेश्चन। जी, मैं महक जेसवानी बोल रही हूँ मुंबई से। मैं हाँ सर, आपका सेशन मैंने आधा अटेंड किया क्योंकि पावर फेलियर था हमारे यहाँ। ओके, बट आई कुड गेट द जिस्ट ऑफ इट। सर मेरा सवाल ये है कि अभी जब हम किसी भी पब्लिक स्पीकिंग के लिए सामने आते हैं, तो वो जो भय होता है उसे कैसे निकाला जाए? सर मैं फील्ड में हूँ, पिछले 15-20 साल से बच्चों को ट्रीट कर रही हूँ, लेकिन अभी लॉकडाउन के बाद आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मैं वेबिनार्स वगैरह लेना शुरू करूँ। लेकिन वो भय टू टॉक इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड इज सो ह्यूज। इन स्पाइट ऑफ माई रिच एक्सपीरियंस, आई हैव अ रिच एक्सपीरियंस, वो मुझे पीछे खींचता जा रहा है, मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। ओके। और मेरे घर में खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर है, मेरे हस्बैंड है, इतने सेमिनार्स लेते हैं, इतने एवरीडे उनके सुबह से लेके रात तक फ्री सेमिनार्स, पेड सेमिनार्स चलते रहते हैं, फिर भी मुझ में वो कहीं वो क्षमता नहीं लग रही है। ओके आलोक बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या नाम बताया आलोक इन्होंने अपना? महक जी। महक नहीं, बहुत आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। जब पहली बार मैं भी स्टेज पे गया था, तो मुझे लगभग धकेला गया था, है ना, क्योंकि हालत नहीं थी स्टेज पे जाके बोलने की। मैं अभी भी जहाँ कॉलेजेस में जाता हूँ, ये आप हमेशा गौर करिएगा, बहुत तरीके हैं। एक तरीका बताता हूँ, जो ऑडिटोरियम में मुझे भाषण देना होता है, मैं कह देता हूँ कि मुझे उस ऑडिटोरियम में आधा घंटा पहले जाना है और अकेला बैठना है। आप देखिएगा, है ना,
इसको जीवन में कर लीजिए, आपका आधा वे निकल जाएगा। 15 मिनट में ऑडिटोरियम में एकांत में बैठता हूँ, कोई नहीं आता है। 15 मिनट के अंदर में जो दीवारें हैं, जो वहाँ का वातावरण है, माहौल है, वो मेरा अपना हो जाता है। मैं कि मैंने अनुभव एक बार नहीं, हर बार अनुभव किया है। झिझक चली गई। आप जो माहौल है उससे आप एक हो जाइए एक बार, और ये माहौल आपको, दीवारें जो होती हैं आपको आत्मसात कर लेती हैं। दूसरी बात, आपने अगर आईने के सामने अभ्यास नहीं किया तो खड़ी हुई है, अपने को सबसे कॉन्शियस जो है वो खुद ही लगता है आदमी। आईने के सामने आप अभ्यास कीजिए, 2 चीज करके देखिए, और फिर भी दिक्कत आती है तो आलोक से आप कांटेक्ट करिए। इस पे आपको डिटेल्ड में हम आपको भेज देंगे, पर ये 2 आप करके देखिए। मुझे लगता है जरूर आपको, आपने कभी किया ऑडिटोरियम में, कभी गई है, आधी घंटा बैठी है अकेली? नहीं, अकेले तो नहीं, ऐसे ग्रुप सेमिनार। हाँ नहीं, छोड़िए उसको। जहां आपको भाषण देना है वहां अकेले बैठ के देखिए, वो माहौल आपको एक कर देगा। भाषण आपसे माहौल ही करवा देता है। अभी तो ये माहौल है कि ऑनलाइन मुझे लेना है। कोई बात नहीं, कैमरा के सामने, लैपटॉप के सामने, मिरर के सामने, वो सब तो करना पड़ेगा। आप अपने भाषणों को टिप करके खुद सुनिए, वगैरह वगैरह करिए, और ना आप आलोक से कांटेक्ट करिए। एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि जब समटाइम्स यू टॉक फ्रॉम योर हार्ट, and that moments you present your own thoughts and it is sounding a perceived in the subtles। मैं इसको ये कहना चाहता हूँ, कभी कभी आप अपने दिल से जब बात करते हैं, उस क्षण आप अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं, जब दिल से आप बात करते हैं तो। और आप ये जान लीजिए, यह एक ध्वनि है। जब आप कोई चीज बोल रहे हैं, कोई चीज प्रस्तुत कर रहे हैं, यह एक एकदम सूक्ष्म ध्वनि है। और जब आप वो दिल से बोल रहे हैं, आप अपने विचार से बोल रहे हैं, तो वो सूक्ष्म ध्वनि लोगों तक पहुंच जाती है। तो मैं हमेशा कहूंगा कि जब भी आपको कोई भी चीज बोलना है, तो बनावटी तरीके से अगर हम बोलना बंद कर दें, हम अपने दिल से बोलें, अपने मन से बोलें, अपने, जैसे सर ने बोला कि हम अपने प्लान से बोलें, तो हम एवरीथिंग वी कैन सक्सेस। सो थैंक यू एवरीवन। सर, मैं लास्ट में एक आपका क्लोजिंग थॉट्स लेना चाहूंगा, और फिर मैं कहूंगा कि वी हैव आल्सो ऑब्जर्व्ड, हम लोगों ने ये देखा अपने लाइफ में, लोएस्ट फॉर्म ऑफ ओन टॉकिंग, हमारा जो अपना बोलने का जो सबसे निम्न स्तर का जो तरीका कभी कभी हो जाता है, एंड इट सिग्निफाइज टुवर्ड्स आवर इट्स आउटवर्ड एक्सप्रेशंस। इट इज दिस इज स्पोकन वर्ड्स इमर्जिंग फ्रॉम द आवर थॉट्स। हमने स्वयं बातचीत करने का, जो अपना खुद का बातचीत करने का जो एक निम्न स्तर भी देखा है, कि हम कितने नीचे स्तर तक की भी कभी कभी बात कर लेते हैं, और यह हमारी बाह्य अभिव्यक्ति है, जो दर्शाता है कि हमारे ये गले से ही, हमसे ही निकला हुआ शब्द है। तो ये जो शब्दों का जो प्रदूषण वाली बात आपने कहा सर, कि इस पे थोड़ा सा हम और थोड़ा जाने कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये शब्दों का प्रदूषण ना हो। ये जो हमारे गले से जो ऐसे शब्द निकल जाते हैं, हमारे मुख से ऐसे शब्द निकल जाते हैं, वो कैसे रोका जाए? बहुत बढ़िया आलोक, आपने बहुत ही एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। आपको मैं बधाई देता हूँ। मैं संक्षेप में बात ये रखूंगा कि शब्दों के प्रदूषण को रोकना बहुत जरूरी है। उसको रोक लीजिए, रोक लीजिए, रोक लीजिए। और सबसे कारगर तरीका ये है कि प्लीज अवॉइड टॉक्सिक कंपनी। आप जहरीली कंपनी के साथ में आप उठना बैठना बंद कर दीजिए, आपकी आधी समस्या खत्म हो जाएगी। हमारे यहाँ इस देश में भाषा इतनी समृद्ध है आज भी, कि अगर आप अच्छे लोगों का संग कर लेंगे, आपकी भाषा में निखार तो वैसे ही आ जाएगा। एक बात है जो हम सब जानते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि आपके 20 लोग मित्र हैं। सर, आपका माइक म्यूट हो गया है। अनम्यूट हो गया, अनम्यूट। यस सर। हाँ, तो जो बात थी, टॉक्सिक कंपनी से अपने आप को बचाइए, एक बात। और दूसरी बात, आप वही हैं जो आपके मित्र हैं। अगर आपकी कंपनी अच्छी होगी, आप में व्यक्तित्व में निखार आएगा, और जब निखार आता है तो भाषा भी समृद्ध होती है। एक बात भाषा का। दूसरी बात यह है कि मुझे ललक कहाँ से पड़ी भाषा ठीक करने की, आप चौंक जाएंगे। मैं पार्लियामेंट का डिबेट सुन रहा था, भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर बोल रहे थे। उनको सुना मैंने तो मेरा मन झूम गया। मैंने निर्णय किया कि मैं पार्लियामेंट के डिबेट सुनूंगा। अच्छे डिबेट सुनिए, आपकी भाषा समृद्ध होगी।
अच्छे लोगों को पढ़िए। मेरे फेवरेट दिनकर रहे हैं, मैं उनको पढ़ता हूँ। तो ऐसे लोगों को आप पढ़ेंगे तो भाषा समृद्ध होगी। और रही भाषा को नीचे करने की बात, आप एक बात सबके सब जो सुन रहे हैं प्लीज नोट इट डाउन। अगर आप वाणी का अपमान नहीं करते हैं, वाणी ईश्वर की पत्नी मानी जाती है, ठीक है, वाणी का अपमान नहीं करते हैं तो जरूरत पड़ने पर लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर एक बार बोलता हूं, तो जरूरत पड़ने पर वही वाणी आपकी रक्षा कर देती है। ये बहुत गंभीर बात है, इतना महत्व है वाणी का। वाणी आपको मुसीबत से निकाल देगी अगर आपकी वाणी सही है तो इस सब बातों को ध्यान में रखिए। और हमारे यहाँ तो भगवद गीता में वाणी का तप माना गया है। वाणी तो तप मानी जाती है, अगर वाणी का संयम हो तो तप है। तो इस तप को अंगीकार करिए, स्ट्रेंथ लाइए। हाँ, थोड़ा सा कम भी बोलने की आदत रखेंगे तो मुंह से गलत शब्द कम निकलेंगे। और जब गलत शब्द निकलें तो कोई प्रायश्चित करिए, किसी को एक केला ही दे दिया जिसको जरूरतमंद हो, तो ये सब काम करेंगे तो आप में तप आएगा वाणी का। बड़ी मुश्किल है, आदत लग जाती है वाणी को नहीं करने की। तो आज का अंतिम बात यही है कि वाणी का तप है, इस तप को सबको करना है और खुद ही नहीं करना है, जो सुन रहा है वो इस बात को धारण करे, ये आभूषण है। और दूसरा मुहावरे, लोकोक्तियां, इनको धारण करिए। चाणक्य को पढ़िए, विदुर को पढ़िए, आपको ज्यादा समय नहीं देना पड़ेगा, निकल जाएगा समय, आप में वाणी का तप आएगा। और दूसरा, वाणी आपकी रक्षा करती है। तो अगर रक्षा करती है तो हमें और क्या चाहिए, हमको तो घर बैठे बैठे चीजें मिल गई है ना। तो ये सब मन में थी। आपके पास अगर किसी के भी, जो भी हमारे श्रोतागण हैं, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, प्लीज अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है तो आप हमें यहाँ के बाद फेसबुक के मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं मशवरा mashwara@manovikas.family पर। और जितने लोगों की सर्टिफिकेट से रिलेटेड बात है, जब आप फॉर्म भरते हैं तो आप अपना नाम सही लिखेंगे तो आपको सही सर्टिफिकेट मिलेगा। सो आप प्लीज 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 एंड देन आई रिक्वेस्ट नाउ द प्रेसिडेंशियल रिमार्क्स फ्रॉम आवर प्रेसिडेंट डॉक्टर निमेश जी देसाई सर। हमारे अध्यक्ष डॉक्टर निमेश जी देसाई सर से आग्रह है कि वो सत्र का सभापति का मंतव्य दें। सर म्यूट है आप। नमस्कार अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जैसे मैंने शुरू में कहा था, कुछ मौके और कुछ अवसर ऐसे होते हैं कि सुनना बेहतर होता है बोलने के बजाय। तो आज ऐसे मौकों का एक उत्कृष्ट उदाहरण मिला। सुनने से बहुत सारी जानकारी हुई, लर्निंग हुई। आप और हम करीब करीब हम उम्र है, समकालीन है, लेकिन बहुत सीखने को मिला। और मुझे पक्का विश्वास है कि हमारे युवा साथियों को बहुत सारी सीख मिली। मृदुभाषी और वजनदार, sweet and carrying weight. Those are the two adjectives that occur to me for all the ideas that you have shared, Arvindji. I am sure your young people have benefited a lot. किसी मौके पे आप और हम चर्चा भी करेंगे, विवाद भी करेंगे समूह के सामने या हमारे में, क्योंकि बहुत सारे विचार हैं जिनके बहुत सारे पहलू हैं। वो किसी मैं वेट करूंगा उस मौके का। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी एक बार और। थैंक यू सर, थैंक यू। सब अच्छा बोलें, सुभाषित बोलें, आगे जाएं इसी भावना के साथ। So I would like to tell that we are coming again on Saturday, June 13th at 3 p.m. With an important subject on legal guardianship process under the National Trust Act. After receiving lot of interest and questions from you all, especially on the legal guardianship issues, also as a local level committee of Manovikas, is a local level committee of National Trust, we have this the responsibility to talk on this issue. And we are coming on 30th of June at 3 p.m. with an expert. हम शनिवार 13 जून को फिर से दोपहर 3 बजे आ रहे हैं और हम लोग फिर बात करेंगे नेशनल ट्रस्ट के लीगल गार्डियनशिप के प्रोसेस पे कि कैसे हम लीगल गार्डियनशिप अच्छे से आसानी से लोगों तक दे सकते हैं। आप सभी के बहुत सारे प्रतिक्रियाएं आई है। हम 13 जून को फिर से मिल रहे हैं
So now, thank you. I deem it is a great honor to host this 13th episode of Mashwara with Mr. Arvind Sarda ji and Dr. Nimesh Desai sir. Thank you all who have helped us in making all episodes such a grand success.